Okay, so now in today's session, we are going to talk about the transfer function and the transfer model. Basically, we are trying to find out an interconnection between the two types of representations, that is state space representation and the transfer function type of representation. Meaning to say, अगर हमारे पास कोई system state space के form में exist करता है, हमारे पास उसका model जो है वो state space के form में exist करता है, and provided the system satisfies the conditions for transfer function, which is the system is LTI, the system is having zero initial conditions, and so on and so forth. So if these conditions are satisfied for that particular system, from the state space, we can actually calculate the transfer function of that system. Okay, so that derivation today we will see that how the state space representation can actually be converted into a transfer function representation. So we start with the basic equation. This we had studied in the last lecture, how we are getting this equation, that is x dot is equal to ax plus bu, y is equal to cx plus du, where x dot is your state equation, where A is your state matrix, B is your input matrix, Y is your output equation, where C becomes your output matrix, D is your input output coupling matrix, which usually is zero. Okay, because we try to avoid direct coupling, so which usually is zero, but not necessarily zero all the time. So हम general derivation में D को भी consider करके चलते हैं. So as a first step, what we do is now we are considering that the system is LTI, that means linear time invariant system. So अगर linear time invariant system होगा तो system पे Laplace जो है वो applicable होगा. Now if you see ये जो x dot के form में हम लिख रहे हैं, this is nothing but a differential equation. Okay, rate of change of states की बात करते हैं हम इसमें. So this is nothing but a differential equation, and because this differential equation signifies an LTI system, the Laplace transform is applicable. तो हम क्या करते हैं, x dot वाली जो expression है और y जो expression हमारे पास है, इस पे हम Laplace transform apply करते हैं. So what we will get, जब हम derivative पे Laplace apply करते हैं, so we are going to get s into x of s is equal to a into x of s plus b into u of s. And the output equation becomes y of s is equal to c into x of s plus d into u of s. Okay, then what I do, I rearrange these terms. जो first वाला expression है, if I rearrange these terms and I try to find out what is the value of x. Okay, so when I take all the x on one side, I get x is equal to si minus a inverse b into US. देखो S को हमें मैट्रिक्स इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने इक्वल साइज का, जिस साइज का A है, सेम साइज का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स I हम S के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज S इज अ सिंपल क्वांटिटी जिसे हम मैट्रिक्स में चेंज करना चाहते हैं. Okay, in that case what we do, we multiply it by a identity matrix I having the same dimension as A. ओके, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, जब हमने लाप्लास अप्लाई किया तो ये दोनों इक्वेशंस x ऑफ s और y ऑफ s के फॉर्म में हमें मिल गई है. नाउ इफ यू रिमेंबर, हमें जो हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, ट्रांसफर फंक्शन बाय डेफिनेशन मींस द रेशियो ऑफ लाप्लास ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ऑफ इनपुट. इसका मतलब ये जो अब हमारे पास दो लाप्लास की इक्वेशंस आई हैं, इस इक्वेशन को हमें कुछ इस तरह से रीअरेंज करना है कि हमें y अपॉन u मिल जाए. ठीक है, तो दैट इज ट्रांसफर फंक्शन. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x को बीच में से एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज x एक इंटरमीडिएट स्टेट वेरिएबल है जो लाप्लास में कंसिडर नहीं होता. ठीक है, उसमें हम सिर्फ आउटपुट और इनपुट लेते हैं. तो हमारे पास लाप्लास अप्लाई करने के बाद दो एक्सप्रेशंस आए हैं, s into x of s is equal to a into x of s plus b into u of s, and ys is equal to c into x of s plus d into u of s. इन दोनों को हमें इस तरह से रीअरेंज करना है so that the x gets eliminated and we get the ratio y upon u. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें से x का एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके y वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको जब मैं उसके टर्म्स को रीअरेंज करती हूँ
तो I get x of s is equal to si minus a inverse b into us. Now this x of s I substitute in the expression of ys. Okay, so what I get, ys is equal to c into si minus a inverse b into us plus d into u of s. इसमें से u of s में कॉमन बाहर निकाल लूंगी and then take it on the other side. I get the ratio of output and input transfer function. Okay, Laplace of output and Laplace of input, that is ys upon us is equal to c into si minus a inverse into b plus d. Okay, so like this, if you see, the transfer function has been obtained. Transfer function की definition यही होती है that it is the ratio of Laplace of output to the Laplace of input. तो हमारे पास जो expressions available थे उसमें input भी था, output भी था और एक intermediate state expression था. तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ Laplace को apply किया और उसमें से जो state का expression था टर्म्स को रीअरेंज करके हमने उसको एलिमिनेट कर दिया और जो बचा हुआ एक्सप्रेशन हमारे पास आया था उसमें से हम y और u को रेशियो के फॉर्म में इक्वल टू के एक तरफ ले जाएंगे तो दूसरी तरफ हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचता है दैट गिव्स अस द फॉर्मूला फॉर द ट्रांसफर फंक्शन. Okay, so you can refine it writing in this form. Ys upon us is equal to c multiplied by the adjoint of si minus a upon the determinant of si minus a into b plus d. Okay, so now again, like I was telling you, for these type of questions, you should revise how the adjoint is calculated, how the determinant is calculated, so that you can very quickly perform the calculations of these questions, because they are very simple, but just because it is in matrix form, it becomes a little bit lengthy. Okay, so you have to practice how to calculate the adjoint and the matrices, the determinants, etc. Okay, now if you see this carefully, in this particular expression, denominator term जो हमारे पास आया वो है si minus a. और अगर आपको याद हो जब हमने ट्रांसफर फंक्शन की बात की थी तो हम ये डिफाइन करते थे दैट द न्यू डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट सिस्टम. अगर हमें स्टेबिलिटी चेक करनी होती थी तो हम सिस्टम के पोल्स चेक करते थे और बेसिकली पोल्स क्या है, डिनोमिनेटर के रूट्स हैं. तो अगर हम अगर ट्रांसफर फंक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो हमें ये पता होता था कि डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन आया है अगर उसके रूट्स जो हैं वो लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में लाई करते हैं तो सिस्टम स्टेबल होता है. वही सेम कॉन्सेप्ट अब आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे इट विल कम इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ओनली. और इस ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होगा वो होगा si minus a का डिटर्मिनेंट. So therefore determinant si minus a becomes the characteristic equation of the system. The roots or the eigenvalues of this characteristic equation help in determining the stability of the system. All the roots of this equation should lie in the left half of the S plane for the system to be stable. तो si minus a determinant जो होता है हमारे पास इन जनरल, अब आपको एक कंडीशन स्टेबिलिटी की मिल गई है कि अगर आपको एक स्टेट स्पेस के फॉर्म में, इफ this expression is given to you in the form of a state space representation and you want to find out the stability of the system, what you have to do is just calculate determinant of si minus a. एक इक्वेशन बनेगी, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. उस एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो आप रूट निकालोगे, all those roots of this equation should lie on the left half of the S plane, then the system is stable. Okay, और ये क्यों है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये, बिकॉज जब हम इसको ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हमारा si minus a डिटर्मिनेंट से बनता है. And we know that if the roots of the denominator polynomial are in the S, left half of the S plane, the system is stable. Okay, so this derivation you have to remember, and even the formula. If you are directly given a numerical, you can just substitute the values in this last expression, that is ys upon us is equal to c into adjoint of si minus a upon determinant of si minus a multiplied by b plus d.
तो डायरेक्टली आप इसमें ए बी सी डी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कोई मॉडल दिया गया है एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू चेक द स्टेबिलिटी, उस केस में आप क्या करोगे, यू विल फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन डिटर्मिनेंट एस आई माइनस ए, जो आपका डिनोमिनेटर बनता है, आप ये एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करोगे। दिस विल बी कम इन फॉर्म ऑफ सम पॉलिनोमियल एंड इस पॉलिनोमियल के रूट्स आप निकालोगे एंड यू विल चेक वेदर दे लाई इन द लेफ्ट हाफ और द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। If all the roots of this expression determinant si minus a, if they lie on the left half of the S plane, your system is stable. Now let me know if this much part is clear to you. Then another important expression or quantity that we deal with in terms of state space is called a state transition matrix. अब state transition matrix, as the name suggests itself, कि ऐसा कोई value, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसे अगर हम इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टाइम t इज इक्वल टू t1 पर क्या एक्सप्रेशन होगा वो पता चल जाता है। t इज इक्वल टू 0 पर मेरे पास जो स्टेट का वैल्यू था वो था सपोज x0, ठीक है, यानी कि कुछ इनिशियल सेट ऑफ कंडीशंस थी मेरे पास। अब मुझे ये निकालना है कि 5 सेकंड के बाद ये इनिशियल जो सेट ऑफ कंडीशन है ये कैसे चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे, सो वी विल सी दैट हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है e टू द पावर 8t, ओके, व्हिच इज कॉल्ड द स्टेट मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जिसे अगर हम अपने इनिशियल स्टेट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें एक्चुअल टाइम पे जाके, यानी कि जैसे 5 सेकंड बाद या 6 सेकंड के बाद वो जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ स्टेट था वो क्या होगा वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। वी कंसिडर द स्टेट स्पेस एक्सप्रेशन x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। जब हमने इसका लाप्लास अप्लाई किया था तो हमें मिला था si माइनस a इंटू एक्स ऑफ s इज इक्वल टू x नॉट प्लस b us। अब हम ये मान के चलते हैं कि कुछ इनिशियल कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। Now pre-multiplying it with si minus a inverse, हमने दोनों तरफ si minus a inverse को अगर pre-multiply किया तो हमें एक्सप्रेशन एक मिलेगा x of s is equal to si minus a inverse into x0 plus si minus a inverse b into u of s, ठीक है। अब ये मेरे को एक्सप्रेशन मिल गया which is Laplace of x of s, ठीक है, यानी कि स्टेट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लाप्लास। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको वापस इनवर्स ऑफ लाप्लास अप्लाई करके वापस xt में ले जाती हूँ, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर आपको लगेगा कि हम डायरेक्टली xt के टर्म्स में क्यों नहीं काम कर सकते, अगर आप डायरेक्ट xt के टर्म्स में काम करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको इंटीग्रेशन वगैरह सब अप्लाई करना पड़ेगा, विच मेक्स इट मैथमेटिकली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमारा इसलिए पर्पस होता है, हम लाप्लास में ले जाते हैं, लाप्लास में ले जाके उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम इनवर्स लाप्लास अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा जो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ इसको आप ट्रांसफर फंक्शन की तरह मान के मत चलो, सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह मान के चलो कि एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास जिसपे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। तो अगर एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज dx by dt is equal to ax plus bu, अगर मैं इस पे लाप्लास अप्लाई करूंगी तो मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा s into x of s minus x naught, that is the initial condition, is equal to a into x of s plus b into u of s, ठीक है। तो now don't get confused over here, इनिशियल कंडीशन 0 होनी चाहिए, ये कंडीशन ट्रांसफर फंक्शन की होती है। यहां पर हम ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकाल रहे हैं, हमारे पास सिर्फ एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको हम लाप्लास के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आप इनिशियल कंडीशन के साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अगर हम इस कंपोनेंट को 0 कर देते हैं, अगर मैं ये मानती हूँ कि इनिशियल कंडीशन 0 थी, अगर मैं इसको 0 कर देती हूँ तो ही मैं x अपॉन यू कैलकुलेट कर पाऊंगी, अगर मैं x को आउटपुट मान लूं तो कहने का मतलब ये होता है कि वो जो आउटपुट अपॉन इनपुट कैलकुलेट हो पाएगा वो तभी हो पाएगा अगर मैं इस x को 0 कर देती हूँ, अदरवाइज ये माइनस में एक हमारे पास एक्सप्रेशन रह जाता है
जिसकी वजह से हम वो रेशियो नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो इसलिए हमें अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है तब हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि ये x ऑफ 0 जो है ये 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसपे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है। तो उस केस में जब हम डेरिवेटिव के ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो एक्सप्रेशन आता है वो ये होता है। इसे आप लाप्लास को एक बार मैथ्स की बुक से रिवाइज कर लोगे, सो यू विल गेट टू नो। So s into x of s minus x naught, that means the initial condition, is equal to a into x of s plus b into u of s. I rearrange all these so that I get x of s on one side. ठीक है, और मुझे x of s का एक्सप्रेशन चाहिए, तो x of s is equal to si minus a inverse into x naught, which was the initial condition, plus si minus a inverse b into u of s. ये मेरे पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया मेरे स्टेट्स का। अब मैं वापस इसको लाप्लास इनवर्स अप्लाई करके इसको टाइम डोमेन में लेकर जाऊंगी, तो मेरे पास जो x ऑफ t की एक्सप्रेशन आता है, ये देखो फाइनल एक्सप्रेशन मैंने लास्ट में मेंशन किया हुआ है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, इनवर्स लाप्लास अप्लाई करोगे और सॉल्व करके x ऑफ t आपके पास जो आएगा, दैट विल बी e टू द पावर a into t x naught, that means initial conditions multiplied by some quantity e to the power at plus integral of 0 to t e to the power a t minus tau into b into u। इसका मतलब ये हुआ किसी भी टाइम इंस्टेंट पर जो मेरी स्टेट्स हैं उसकी क्या वैल्यू होगी, ये दो कंपोनेंट से डिसाइड हो रहा है। पहला कंपोनेंट जो इनिशियली था वो कैसे चेंज हुआ, प्लस दूसरा कंपोनेंट जो इनपुट हमने अप्लाई किया था वो उसमें से आया, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट मिलकर किसी भी टाइम इंस्टेंट पर मेरी सिस्टम की स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। और इसमें जो हमारे पास ये क्वांटिटी आई है e टू द पावर at, जो कि इनिशियल कंडीशन का ट्रांजिशन डिफाइन कर रहा है एट सम टाइम t, इसे हम कहते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैं इसको, अब जैसे मैंने टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे मुझे देखना है कि मेरा जो इनिशियल कंडीशन था उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है मेरी स्टेट्स की प्रेजेंट स्टेट में, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट मुझे कुछ मिल रही है, जैसे x1 x2 मैंने सम टेम्परेचर सम प्रेशर मैंने अज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो मैं किसी भी टाइम इंस्टेंट t इज इक्वल टू 5 पे जब मेजर करती हूँ तो मुझे t इज इक्वल टू t1 टेम्परेचर मिलता है और p इज इक्वल टू p1 प्रेशर मिलता है। अब ये t1 और p1 दो चीजों से मिलके बना है। एक अफेक्ट वो जो इनिशियली टेम्परेचर और प्रेशर था वो कैसे टाइम के साथ चेंज हुआ, और दूसरा जब हमने इनपुट को अप्लाई किया था, इनपुट को वेरी किया, तो टेम्परेचर और प्रेशर कैसे चेंज हो रहा था। तो इन दो कंपोनेंट को मिला के हमारी प्रेजेंट स्टेट का इफेक्ट जनरेट होता है। अगर मुझे इसमें से ये फाइंड आउट करना है कि क्या इफेक्ट मेरी इनिशियल कंडीशन से आया था, कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर पहले से मैंने जो है कुछ डिफाइन कर रखा था या सिस्टम में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, तो उसका इफेक्ट कितना होगा at t is equal to 5 seconds। वो चीज चेक करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी इनिशियल कंडीशंस के साथ e टू द पावर at फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगी, तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा, t को मैंने 5 रख दिया, a मुझे पता है, अगर मैं इसको इनिशियल कंडीशन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर मेरी इनिशियल स्टेट्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मुझे पता चल जाएगा। तो ये जो फैक्टर हम मल्टीप्लाई करते हैं e टू द पावर at, इसे हम कहते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें इसकी हेल्प से हम डिफाइन करते हैं कि इनिशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, या अगर इनिशियल कंडीशंस कुछ हैं ऑलरेडी तो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कुछ समय बाद ये सिस्टम की स्टेट्स कैसी होंगी। ओके, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट देयर इन आवर ट्रांसफर फंक्शन कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहां पर हम इनिशियल कंडीशंस को जीरो कर देते हैं। ओके, so this is a very important concept, state transition matrix, जो help करता है to find out whether at time t is equal to 5 seconds क्या होने वाला है। Okay, just go through this and see if there is any doubt. Now when we are talking of the states,
that means in state space type of modeling, we have two very important properties, controllability and observability. Okay, so we will try to understand this in a very, very simple manner. Controllability, by the name it suggests, अगर ये possible है कि मेरी जितनी भी state system में है, मैं उन सब को कंट्रोल कर सकती हूँ, यानी कि जो कंट्रोल इनपुट मैंने सिस्टम को सप्लाई किया था, वो कंट्रोल इनपुट मेरे सिस्टम की हर स्टेट को कंट्रोल कर सकता है. जैसे मैंने आपको टेम्परेचर और प्रेशर का एग्जांपल दिया, अगर मैं सिस्टम को कोई ऐसा इनपुट दे सकती हूँ जो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कंट्रोल कर सकता है, तो मैं ये कहूंगी कि मेरा सिस्टम कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल है. अगर मैंने कोई इनपुट ऐसा दिया कि वो कितना भी मैं बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर लूं, मैं टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाती, प्रेशर को मैं कर सकती हूँ पर मैं टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाती इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड आउटपुट. इसमें ये ध्यान रखो कि स्टेट को कंट्रोल करना अब हमारा एक्चुअल टारगेट नहीं है. हमें वही ध्यान में रखना है कि हमें आउटपुट अचीव करना है. उस आउटपुट को अचीव करने के लिए जो हम कंट्रोल लॉ बनाते हैं, वो लॉ अगर हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि हर स्टेट को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाए, तो हम ये कहते हैं कि सिस्टम कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल है. अगर कोई भी ऐसी स्टेट है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो सिस्टम स्टेट कंट्रोलेबल नहीं है, कंप्लीटली कंट्रोलेबल सिस्टम नहीं है वो. और इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है. आपके पास ए और बी मैट्रिसेस अवेलेबल हैं, सिस्टम का ऑर्डर है n. ठीक है, सिस्टम का ऑर्डर अगर आपका n है, तो आपको एक नई कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स निकालनी होती है, जिसके कॉलम्स कैसे निकलते हैं? फर्स्ट कॉलम इज बी मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम इज a मल्टीप्लाइड बाय b, थर्ड कॉलम इज a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b, फोर्थ कॉलम इज a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय b, till a raised to the power n minus 1 into b. ठीक है, ये कॉलम्स को कैलकुलेट करके आप एक नया मैट्रिक्स बनाओगे which is called the controllability matrix, और इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है आपको. ओके, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है. नाउ रिमेंबर, रैंक इज नॉट इक्वल टू साइज. आप रिवाइज कर लेना दैट व्हाट रैंक एक्चुअली मींस, हाउ द रैंक इज कैलकुलेटेड. तो आप इस सिस्टम की रैंक निकालोगे. अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की रैंक इक्वल टू n आती है, यानी कि जिस ऑर्डर का आपका सिस्टम था, अगर उसी ऑर्डर का कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल है. कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल का मतलब इस सिस्टम की हर स्टेट को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है. डिटेल्स आई हैव मेंशन्ड इन द स्लाइड, बट टू अंडरस्टैंड कीप इट वेरी सिंपल. कंट्रोलेबिलिटी मींस all the states can be controlled by some input given to the system. And how we find out whether system is controllable or not? You calculate the controllability matrix and see if the system is of order n. If the rank of the controllability matrix is also n, then the system is completely state controllable. If the rank of the controllability matrix is less than n, that means the system is not स्टेट कंट्रोलेबल. कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम बीइंग कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल. देन अनदर कॉन्सेप्ट सेज ऑब्जर्वेबल. अगेन एज द नेम सजेस्ट्स, अगर हम सिस्टम की हर स्टेट का जो बिहेवियर है उसको आउटपुट पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. टेम्परेचर है, प्रेशर है, दोनों को मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है विद टाइम और प्रेशर का क्या इफेक्ट हो रहा है विद टाइम. तो इसका मतलब हुआ मेरा सिस्टम कंप्लीटली स्टेट ऑब्जर्वेबल है. कई बार ऐसा होता है कि हमें आउटपुट में कुछ इफेक्ट तो पता चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि ये कहाँ से आ रहा है. ठीक है, वो केस ऐसा होता है कि वो कुछ स्टेट है जिसे हम शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम फाइंड आउट नहीं कर पाते कि ये जो स्टेट है ये हमारे आउटपुट में क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है. तो हो सकता है कि हमें ये ना पता चल रहा हो कि सिस्टम का आउटपुट जो है वो एक्चुअल पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा है. बट क्यों नहीं पहुंच रहा है, किस स्टेट की वजह से नहीं पहुंच रहा है, वो हम कैलकुलेट या ऑब्जर्व नहीं कर पाते.
उस केस में हम कहते हैं कि सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली स्टेट ऑब्जर्वेबल। सो कहने का मतलब ये है कि अगर सारी स्टेट्स को हम आउटपुट पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि सिस्टम इज कंप्लीटली स्टेट ऑब्जर्वेबल। ठीक है, और इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? अब क्योंकि ऑब्जर्वेबिलिटी इज रिलेटेड टू द आउटपुट, ठीक है, तो हम इसके लिए एक ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे आपको इट इज गिवन ऑन योर स्क्रीन विथ C matrix and A matrix। ठीक है, कंट्रोलेबिलिटी वाज रिलेटेड टू द इनपुट दैट वी वर गिविंग, तो वहां पर हम मैट्रिक्स बनाते थे A और B के साथ। यहां पर हम ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे C और A के साथ, क्योंकि आउटपुट से रिलेटेड है ऑब्जर्वेबिलिटी। तो हम ये एक मैट्रिक्स बनाएंगे एज यू कैन सी ओवर हियर, फ्रॉम C into A, C into A square like this till C into A to the power n minus 1। और अगर इस सिस्टम का रैंक n आता है तो मेरा सिस्टम कंप्लीटली स्टेट ऑब्जर्वेबल है। अगर नहीं आएगा तो सिस्टम कंप्लीटली स्टेट ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। तो मैंने इसके दो एग्जांपल्स इसमें डाले हुए हैं, यू कैन सॉल्व एंड जस्ट फाइंड आउट, वेरी सिंपल। आपको सिर्फ वो मल्टीप्लीकेशन करके कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स निकालना है, फिर उसका रैंक कैलकुलेट करना है, एंड यू हैव टू चेक वेदर द रैंक इज इक्वल टू द order of the system or not. If it is equal, then the system is controllable, system is observable. If not equal, then system is either not controllable or not observable, depending upon which particular rank is not equal to n. Okay, so this is how you actually calculate the controllability and observability.